My name is Tony Litt. I'm the MD of Sunrise Radio, and it's my immense pleasure to bring you the official Sunrise Radio podcast. We are the #1 commercial Asian station in the United Kingdom, with many firsts to our name, and we continue to be the voice of British Asians who have given us their love and loyalty over 30 years. It's a legacy we cherish and a responsibility that we don't take lightly. Our aim has always been to entertain the listeners with the best of Bollywood and Bhangra, while also addressing their concerns. A real voice for the community, a vibrant community, and a great nation. We are proud to be British and Asian. This podcast is a compilation of some of the things we do on the station, with a stellar lineup of presenters who each have their own personality and style. It's entertaining, informative, engaging, and we hope you will enjoy it here as a podcast if you are unable to tune in to the radio. Don't forget to subscribe and tell your family and friends about this podcast. And do leave us a comment on what you think. We'd love to hear from you. All the best always. Team Sunrise. The UK's biggest station mix. Sunrise Radio. Hey, my name is Shabnam Sahi. Welcome to the official Sunrise Radio podcast. I'm on your radio weekdays from 9 a.m. to 12 noon. If you've heard the show, you know what to expect from it. But here are some exciting, interesting Bollywood stories that you may have missed. This time round, served up as part of our official Sunrise Radio podcast. Enjoy. I'm crossing over live to Mumbai right now, saying a big warm Sunrise Radio welcome and hello to the one, the only Javed Ali. Javed Saab, welcome to Sunrise. Thank you very much, Shabnam ji. Thank you very much, and thanks to all my fans जो मुझे सुन रहे हैं अभी सनराइज ऑडियो पर, रेडियो पर. सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू इस बात का कहूं कि मुझे पता है आप रिकॉर्डिंग के बीच में, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, यू रिकॉर्डिंग समथिंग प्राइवेटली, एंड यू नो you've taken the moment to talk to us. Thank you so much. Now, no, it's my pleasure. Thank you so much. Bye. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यूके में आपके ढेरों फैन हैं. द लास्ट टाइम यू केम हियर इट वाज अ फैबुलसली सक्सेसफुल कॉन्सर्ट. तो इस बार जब आप कॉन्सर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आर यू डूइंग समथिंग स्पेशल? स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी इस बार है ना कुछ और हमारे नए गाने ऐड हुए हैं हमारी लिस्ट में. वो मेरे कुछ और हिट गाने आए हैं, तो वो भी मैं परफॉर्म करूंगा. एंड उसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि ना 99 इयर्स रफी साहब के कंप्लीट हुए हैं. 100 इयर्स शताब्दी ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम रफी साहब का पूरा साल. तो मैं ऑफ कोर्स क्योंकि हम सभी रफी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, एंड तो मैं रफी साहब के कुछ गानों का एक छोटा सा बुके लेकर आप लोगों के लिए आऊंगा. और इट बी अ सरप्राइज टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऐसे ऐसे गाने हम लोगों ने चूज किए हैं जो आपके बहुत बहुत फेवरेट हैं. एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया से मुझे लोग है ना ये पैगाम पहुंचाते हैं कि ना आप जब रफी साहब के गाने गाते हो तो कुछ अलग बात होती है, मतलब ये लोग कहते हैं. सो आई एम थैंक्स टू ऑल माय फैंस के जो इतना प्यार देते हैं मुझे. सो ये सारी चीजें होंगी. ऑफ कोर्स कुछ गाने इस शो में बहुत डिफरेंट वैरायटी होने वाली है, क्योंकि मैं सूफी भी परफॉर्म करने वाला हूँ, रफी साहब के गाने भी परफॉर्म करने वाला हूँ, अपने हिट गाने भी परफॉर्म करने वाला हूँ, एंड ऑफ कोर्स कुछ फोक भी मैं परफॉर्म करने वाला हूँ. सो इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल द जॉनर्स. It's going to be fantastic. It sounds so good. Javed, you know, I was going to ask you that later in the conversation कि जब आप रफ़ी साहब के गाने चुनते हैं, he is a man who has given us hit after hit after hit in virtually every genre, as you're saying. You know, he's done happy songs, sad songs, qawwalis. So how do you pick and choose? मतलब कोई आपने कुछ फॉलो किया है कि सर्टेन डेकेड्स में से कुछ गाने लेंगे, या फिर उनके जो सुपर हिट्स थे सिर्फ वो, या फिर जो गाने आजकल सुनने को नहीं मिलते हैं? Is it going to be a surprise mix, an eclectic mix? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ना कुछ गाने ऐसे हमारे दिल को ऐसे लगते हैं कि ना हमें लेने चाहिए ये गाने, बट कभी कभी ना ऑडियंस को वो रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गाने उतने शायद ज्यादा ना पॉपुलर ना हो, या उतना रिकॉल वैल्यू ना हो उन गानों का. तो कभी कभी हम वो गाने भी लेते हैं क्योंकि वो गानों को लोग फिर ध्यान से सुनेंगे कि उन्होंने कैसा गाया था. तो मैं मिक्सचर करता हूँ, और मोस्टली ना पॉपुलर कैटेगरी की तरफ ज्यादा जाते हैं, इसलिए क्योंकि लोगों का रिकॉल वैल्यू उन गानों का ज्यादा होता है. बट इन द मीन टाइम है ना कुछ ऐसे भी गाने होते हैं उनके साथ में कि जो थोड़े रेयर होते हैं, और है ना वो गाने अगर है ना लोग सुनते हैं तो उनका जैसे
मदन जी के कुछ गाने हैं या फिर ना ओपी नैयर साहब के कुछ गाने हैं जी। तो ये सब गाने ना जब हम सुनते हैं, अरे ये गाना तो हमने ज्यादा सुना नहीं था, जो वो सुनते हैं वो गाने इतने क्लास होते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर 5 गाने हमें ना पॉपुलर ले रहे हैं तो एक आध गाना ऐसा भी रेयर भी हो ताकि लोगों को पता चले अच्छा ये भी गाना था ऐसा। फैंटास्टिक। वैसे तो ये तरीका रहता है। तो बाकी तो फैंस लोगों को रफी साहब का नाम आया और रफी साहब के गाने सुन रहे हैं, बस उससे ही उनका दिल खुश हो जाता है। एब्सोल्युटली। यू नो, हम हिट गानों की बात कर रहे थे। जावेद, ये बताइए, जब आपको एक गाना दिया जाता है इन अ स्टूडियो, व्हेन यू आर सिंगिंग इट, उस वक्त कैन यू प्रेडिक्ट कि यार ये तो बिल्कुल सुपर हिट लग रहा है? कैन यू प्रेडिक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट कर पाते। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। अब मसलन मैं एक बात बताता हूँ, जैसे श्रीवल्ली गाना है, तो जब मैं वो गाना गा रहा था तो गाना गाते वक्त मुझे लगा नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट होगा। हाँ, ये था कि गाने का ग्रूव बहुत अच्छा है, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है, वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक हिट जो फार्मूला होता है वो अलग ही होता है। वो ऑडियंस को क्या चीज पसंद आ जाती है उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई गाना नहीं समझ में आता है कि ना ये तो ठीक है गाना, लेकिन वो गाना इतना बड़ा हिट हो जाता है। जैसे मसलन एक गाना मैंने गाया था, टिंकू जिया करके एक गाना था। हाँ। तो यमला पगला दीवाना का, तो वो मैं ऐसे गा रही तो वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया। प्लस एक गाना और था ऐसे कमर्शियल, मैं तेरा हीरो का गलत बात है, वो गाना भी मैंने गाया और फिर इतना बड़ा हिट हो गया वो गाना भी। हाँ। तो ऐसा बहुत कम होता है कि ना हमारा जो परसेप्शन है वो सही बैठे जी। और कई बार ऐसा होता भी है, जैसे जश्न बहारा गाना था। बिल्कुल। अब जश्न बहारा गाना मैंने गाया था तो उस वक्त है ना बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था और है ना बहुत हेवी सॉन्ग्स आ रहे थे, मतलब ऑर्केस्ट्रा वाइज, और ये एकदम Soothing and soft, सॉफ्ट absolutely. सॉफ्ट गाना था। लेकिन ये गाना उन सब गानों के बीच में ऐसा निखर के आया कि वो उसका अलग ही जादू रहा। एब्सोल्युटली। अच्छा जावेद, ये बताइए, कहना बड़ा मुश्किल है जी। और मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए इट इज गुड दैट दे डोंट नो, बिकॉज ऑब्वियसली आप हर गाना दिलो जान से अपना हार्ट एंड सोल लगा के गाते हैं, होपिंग दैट इट वुड बी अ हिट, राइट? नाउ यू हैव सung फॉर एक्टर्स एंड इन फिल्म्स इन बॉलीवुड, इन साउथ इंडिया। क्या कोई ऐसा एक्टर है जिनके लिए आपने अभी तक प्लेबैक सिंगिंग नहीं की है? क्या कोई ऐसा डायरेक्टर है जिनकी फिल्म के लिए आप रियली गाना चाहते हैं बट यू हैवंट सो फार? मैं एक्चुअली ना, मेरे बड़ी तमन्ना है कि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा था, मैंने कहा था, लेकिन जैसे इलैयाराजा सर के साथ मैंने अभी गाए हैं कुछ 2-3 गाने, MM करीम साहब के लिए गाए हैं या विशाल भारद्वाज जी के लिए अभी गाया, जो कि मैंने पहले गाया नहीं था। एक मेरे से बचे हुए हैं विशाल शेखर, उनके लिए मैं कभी गाया नहीं है, और एक मैं संजय भंसाली जी के लिए गाना चाहता हूँ। वो एक मतलब मेरी बड़ी तमन्ना है कि ना संजय भंसाली जी जिस तरह का म्यूजिक करते हैं, मेरा भी टेस्ट है ना काफी है ना, मतलब उस जोन का ही टेस्ट है, थोड़ा इंडियन स्टाइल का ना। तो मैं बस चाहता हूँ कि फ्यूचर में कभी उनके लिए उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिले। बाकी तो अदरवाइज मैंने सबके साथ काम किया है, ऑफ कोर्स कर ही रहा हूँ, और आई एम एंजॉयिंग माय वर्क। Fantastic. My last सवाल to you, Javed. And you know what, we were talking about this in the break when we were chit-chatting. मैंने आपसे ये कहा था कि you know one of the things I love about your songs, or your career I should say, is the fact कि आप गा भी रहे हैं but you're not overused. We wait for your next song when one song becomes a hit. So is that a planned strategy? मैं थोड़ा तो है एक्चुअली। क्या होता है फिल्म के बारे में नहीं, स्पेशली जब मैं सिंगल प्राइवेट म्यूजिक करता हूँ, सिंगल्स करता हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा ना ऐसा नहीं कि ओवर यूज हो जाऊं कि हर दूसरा गाना गा रहे हैं, हर तीसरा गाना गा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि हर फिल्म में मेरे गाने नहीं होते हैं, कभी कभार एक गाना जो खास गाना होता है वो मुझे मिलता है। बिल्कुल। तो जो भी गाना वो गाना मुझे मिलता है तो फिर वो मेरा वो मतलब वो एक होता है ना, एक मेरा बच्चा बन जाता है वो। तो मैं उसको पालता हूँ फिर। आप कितने हम्बल हैं, ये कहने की बजाय कि जो गाना मुझे मिलता है उसे मैं खास बना देता हूँ, आप कहते हैं कि वो खास गाना मुझे मिलता है। Amazing. That's what we love about you. चले जी। तो मैं बस वो कोशिश करता हूँ बस कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स ना प्राइवेट म्यूजिक में मैं थोड़ा सा ना देख के हर गाना नहीं करता, मैं सोच समझ के गाना करता हूँ कि ना मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें मैं थोड़ा सा चूजी रहता हूँ प्राइवेट म्यूजिक में। अदरवाइज फिल्म के गानों में मैं एकदम फ्लेक्सिबल हूँ। मैं टिंकू जिया भी गाता हूँ, जश्न बहारा भी गाता हूँ, कुन फाया कुन भी गाता हूँ, एक दिन तेरे राहों भी गाता हूँ, नगाड़ा भी गाता हूँ, सब तरह के गाने
Better Piece of God मुझे मिले हैं. एंड ऑफ कोर्स अभी डंकी का गाना अगर आपने सुना हो, चल बे बतना, Absolutely. वो गाना Fantastic. वो लेटेस्ट गाना. Fabulous. Javed Ali, thank you so much for giving us this time. So many people on my studio you, WhatsApp. Momna, Shri in Slough, Mayur and Hina in Kent, Meghna in Woking and Preeti in Crawley. So many of them saying we absolutely love you. And you're going to be touring very, very soon. I'm going to be giving them details. And thank you so much for your time. Thank you, Shabnam ji. Thanks to all my fans. Thank you so much. You can catch Shabnam Sahi, the ultimate storyteller, weekdays 9 a.m. till 12 noon.